کل پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ نئے قائد ایوان کا انتخاب کل صبح 11 بجے ہوگا۔ حکومت کی جانب سے پرویز الہی امیدوار نامزد، عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری سے تحریک عدم اعتماد غیر مؤثر ہو گئی۔ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے وفاقی اور صوبائی وزراء متحرک ہو گئے۔ پرویز خٹک، محمود الرشید، سمسام بخاری اور دیگر وزراء ناراض ارکان کو منانے کے لیے آج اہم ملاقات کریں گے۔ پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کے سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری، اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہوں گے اور سینئر اینکر پرسن آسما شرازی بھی شریک گفتگو ہوں گی۔ سب سے پہلے طارق چودھری، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آج اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ باقاعدہ طور پر عثمان بزدار کا استعفی منظور کر لیا گیا ہے اور اب اس کے بعد کل کا یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے وزیر اعظم نے ایک اہم خطاب کیا سیکیورٹی ڈائیلاگ کے فورم پر اور اس میں انہوں نے کھل کر کچھ باتیں کی اور یقینی طور پر کچھ باتیں جو وزیر اعظم اپنے کل خطاب میں بھی کر چکے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا ابہام تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی اس خطاب کے بعد کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر کا جو خطاب ہے آج کا سیکورٹی ڈائیلاگ، اس میں جو موضوع تھا اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر نے باتیں کی ہیں اور جو کل کا خطاب تھا وہ دونوں اسی بات کے گرد گھومتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ان کے خلاف منظور جو موو ہوئی ہے اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے۔ یہ بیانیہ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اور مخاطب ان کا اپنی آڈینس ہے اور ثابت وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو عدم اعتماد کی تحریک جو کہ اگلے 2 روز میں جو وائنڈ اپ ہو جائے گی اور اب تک کی جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق جس طرح سے اپوزیشن نے اپنے ارکان جو ہے وہ شو کیے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اور اب جو ان کے وزراء ہیں پرائم منسٹر کے، ان کی کابینہ کے وزراء ہیں، وہ بھی یہی بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی وہ ناکام ہوں یا کامیاب ہوں عمران خان صاحب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں کی آنے والے سینیریو کی تیاری کر رہے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر الیکشن کا سینیریو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر تبدیلی آئے گی اتوار کے روز تو اس کے بعد جو موجودہ اپوزیشن ہے جو کل کو آنے والے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں یا کچھ دنوں کے پروسیس کے بعد حکومت سنبھال لے گی، وہ یہ بات بار بار کہہ چکی ہے کہ انہوں نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے اور الیکشن ریفارمز کے بعد انہوں نے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ تو اگلے چند ماہ میں اگر انتخابات ہونے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک بڑا مضبوط اور کامیاب بیانیہ چاہیے عمران خان صاحب کو۔ وہ بیانیہ جو انہوں نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اپنے پے در پے جلسوں میں ترتیب دیا ہے اور اس کو بڑی کامیابی سے ایڈووکیٹ کیا ہے، جس کا ایک نتیجہ ایک جھلک جو ہے وہ جو کل الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا فیز تھا جس میں 17 یا 18 اضلاع شامل تھے اور وہ اضلاع بھی شامل تھے جن کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون کا اور JUI کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے، جس طرح ایبٹ آباد ہے، منسیرہ ہے، اس کے علاوہ سوات ہے، شانگلہ ہے جہاں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ رہتی ہے، لیکن وہاں پر مسلم لیگ نون کوئی بہت اچھی بلکہ بری پرفارمنس جو ہے کہا جانا چاہیے وہ انہوں نے رجسٹر کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو، اپنے کیڈر کو، اپنے فالوور کو ایک بہت مضبوط بیانیہ دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب یہ بیانیہ جو ہے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کس طرح کاؤنٹر کرے گی، آج کی اپوزیشن کس طرح کاؤنٹر کرے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی طرح آج جو پیٹرولیم پرائسز کے حوالے جی بالکل اس کو آپ کنٹینیو کیجئے گا، لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ لاہور چلتے ہیں اور سلیم شیخ سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی میں آنے والی تبدیلی پر اور کل کے اجلاس کے حوالے سے۔ جی سلیم، کیا کہیں گے آپ؟ جی، مونس جو گورنر پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ کل جو ہے اجلاس بلایا جائے اور اجلاس بلا کر جو ہے قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کروایا جائے، تو کل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جو
कानूनी ज़राए हैं जी। और जो वहाँ पर आज असम्बली सेक्रेटेरिएट में बात हुई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि कल जो है इंतखाब का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आज 5 बजे तक जो है पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कागजात नामजदगी उम्मीदवारों को फराहम कर दिए जाते तो फिर जो है वो इंतखाब मुमकिन हो सकता था, क्योंकि नोटिफिकेशन ताखीर से हुआ है। दो के मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं MPs हैं वो काफ़ी तादाद में आए भी थे और उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज राई से मुलाकात भी की है, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया है कि कल क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सकता, टाइम कम है, तो लिहाजा कागजात नामजदगी भी जो है वो उम्मीदवारों को फराहम नहीं किए गए। अब ये है कि कल जो है कागजात नामजदगी फराहम किए जाएंगे और शेड्यूल भी अभी तक अनाउंस नहीं किया गया और कागजात नामजदगी फराहम करने के बाद जो है उनको जमा भी होना होता है, जमा होंगे, फिर उन पर एतराज़ात होंगे और उसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन का अनाउंस किया जाएगा। और गालिब इम्कान यही है और असम्बली सेक्रेटेरिएट ज़राए जो है वो ये बताते हैं और मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अगर कल जो है कागजात नामजदगी जो है इशू किए जाएंगे और फिर जमा भी कल ही होंगे तो फिर इतवार के रोज जो है इलेक्शन हो सकता है, ताहम इसका भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जी बिल्कुल ठीक है, इतवार के रोज होंगे, क्योंकि पहले जो इत्तलात आ रही थी उसमें बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, तो हमने कहा कि इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं और सलीम शेख ने उसको क्लियर भी कर दिया। जी तारिक चौधरी, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि आज जिस तरह से उन्होंने खिताब किया है और उसके अलावा उन्होंने एक और फैसला बहसीत प्राइम मिनिस्टर किया जो पेट्रोलियम प्राइसेस का था। आज जो समरी सामने आई उसके मुताबिक 55 रुपए और 70 रुपए की रिकमेंडेशन की थी ओगरा ने कि इतनी जो गुज़श्ता दिनों में जो फ्लक्चुएशन हुई है और इससे पहले जो पेट्रोलियम प्राइसेस को कैप किया गया, एक जगह फ्रीज किया गया, उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट आया है उसको पूरा करने के लिए 55 और 70 रुपए मजीद इजाफा किया जाए। लेकिन आज एक मरतबा फिर जो आज से 1 माह पहले 1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस को नहीं बढ़ाया जाएगा बजट तक, तो उसमें नहीं बढ़ाया। तो अच्छे ऐसे फैसले जो यकीनी तौर पर उनको अवाम में पज़िराई देंगे और आने वाले दिनों में जब वो अपोजिशन में जाएंगे अगर मुमकिन तौर पर, तो फिर उनको इस तरह के फैसलों से बड़ी मदद मिलेगी। तो इस वक्त वो जो भी वो और उनकी पार्टी और उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं वो एक अवामी बयानिया तरतीब देने में मसरूफ हैं और अवामी बयानिया ये है कि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के हवाले से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, गैर मुल्की कुव्वतों की गज़ब गज़ब का सामना करना पड़ा और ये भी वो कामयाबी से एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गो कि अपोजिशन उसको काउंटर कर रही है और काउंटर बयानिया भी दे रही है। एक खत के हवाले से एक खत में जो थ्रेट आया था वो सारी चीज़ें अब सारी मंजिल यहाँ पर आ चुकी हैं। तो साबित वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने जो कि मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी दी थी, लिहाजा गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान के सियासी अनासर के साथ एलिमेंट्स के साथ मिलकर उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि वो ये बयानिया कितनी कामयाबी से अपने वोटर और अपने सपोर्टर और ख़ास तौर पर जो आम वोटर है उसके जहन में डालने में कामयाब होते हैं और फिर ये है कि इस बयानिया को अपोजिशन किस तरह से काउंटर करती है। ये बयानिया जो है आइंदा पाकिस्तान की सियासत में कुछ माह तक बड़ा वैलिड रहेगा। जिसको आगे बढ़ाते हैं, आज हमने देखा कि 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहबाज शरीफ साहब ने और यही गुफ्तगू जो है बिलावल भुट्टो ने भी की। हमें ज्वाइन किया आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि अगर गैर आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा और कुछ इसी तरह की बात बिलावल भुट्टो ने भी की। तो क्या कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि इन चीजों को होता हुआ देखा जा सकता है जो खदशात अपोजिशन के जहन में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये खदशात दुरुस्त हैं। कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि अभी थोड़ी देर पहले सिंध हाउस में भी कुछ ऐसी अटैम्प्ट्स हुई हैं जिसकी वजह से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बहरहाल हम उसको रिकन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ही हम अपने नाज़रीन को बता पाएंगे, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल जारी है और काफ़ी ज़्यादा जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है। लेकिन देखा जा सकता है कि अब आगे जाके ऑप्शंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास। वो इमरजेंसी क्या लगा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सिचुएशन में वो लगा सकते हैं जब उनके पास एतमाद ही इस वक्त हाउस का मौजूद नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव हो चुकी है। कुछ इत्तलात हमें सिंध हाउस से भी आ रही हैं कि वहाँ पे भी शायद कोशिश कर रही है
बहुत सारे लोगों को एक्टिव किया है, हुकूमती रियासती इदारों को वहाँ पे एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जब ये एक मुसद्दक़ा इत्तलात मजीद होंगी तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है सिचुएशन किसी भी तरह के तसादुम की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि लगता ऐसे है कि वज़ीर आज़म बिल्कुल ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और हर तरह से वो अब ताकत का भी इस्तेमाल जो है वो हो रहा है इस वक्त। देखिए अब क्या बनता है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान में जो है वो आईनी तरीके से किसी भी हुकूमत को जो है वो घर भेजने की तैयारी की जा रही है, और नंबर्स की गेम है जो कि 172 का नंबर है। और बार बार हम ये कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर 172 के लोगों को प्रोड्यूस कर देते हैं तो जाहिर है कि ये उनके लिए पता होगी, आई मीन वो बरकरार रहेंगे अपने ओहदे के ऊपर और वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और यही उनको कोशिश करनी चाहिए थी, इससे पहले भी इसके बाद में भी। लेकिन अगर वो इस कोशिश को नहीं करते और इसकी जगह कुछ और तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश होती है तो ये जाहिर है कि बदकिस्मती जरूर होगी पाकिस्तान की। अच्छा, वजीर आजम और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को और मौजूदा हुकूमत को एक मजबूत और अपनी तर्ज पर खारजा पॉलिसी मुरतब नहीं करने दी गई, और उसके जवाब में बैनुल अक़वामी प्रेशर भी आया, अंदरूनी साजिश भी उसका हिस्सा है। क्या ये एक पॉपुलर बात होगी पूरी दुनिया के लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉपुलर नैरेटिव बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है या प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये कुछ दिनों तक तो जरूर इसके अंदर जान रह सकती है। लेकिन लोग जब उनको जब पता चलेगा कि पाकिस्तान का अगला बजट कैसा है, पाकिस्तान की मईशत कैसी है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और किस वजह से हुए हैं, किन वजूहात की वजह से हुए हैं और कौन इसका जिम्मेदार है, तो जाहिर है कि ये ढकी छुपी बातें नहीं होती हैं। ये बहुत साफ नजर आ जाता है कि कहाँ पे किस तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी और पाकिस्तान की जो तमाम चीजें उनको करने की कोशिश की। लेकिन आप एक बात देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट है उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर ये हमेशा से रहा है एंटी अमेरिकनिज्म, और पाकिस्तान में ये समझा भी जाता है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं उनकी जिम्मेदारी दुनिया के ऊपर है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 4 साल के अंदर हमारी मुआशी पॉलिसी है वो क्या रही। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के साथ ऐसे मुआहदे नहीं किए जिसकी वजह से इस वक्त मुआशी सूरत हाल खराब है? क्या पाकिस्तान ने ऐसे मुआहदे IMF के साथ नहीं किए कि खुद स्टेट बैंक से पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बोरिंग इस वक्त जो है वो करने नहीं कर सकती है? ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये सब जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल सबके सामने है कि आपको IMF के कहने के ऊपर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है, आपको IMF के कहने के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं, आपको IMF के कहने के ऊपर अपनी रिफॉर्म्स लानी पड़ रही हैं। ये इससे पहले कब हुआ इस तरह? बिल्कुल IMF के पास जाती नहीं हुकूमतें, लेकिन इस हद तक कब हुआ? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही देना है। और इसकी बहुत बहुत सारी स्टेटमेंट जो है खुद प्राइम मिनिस्टर की ऐसी मिलती हैं कि वो कहते हैं मजबूरी में हमें IMF के पास जाना पड़ा, हम जाना नहीं चाहते थे। फिर आप देखिए शुरू में जब गवर्नमेंट आती है 6 महीने पहले वो कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, और उसके बाद 6 महीने के बाद वो जाते हैं, जब तक इतनी माशी सूरत खराब हो जाती है कि उनको IMF के पास जाना पड़ता है और फिर IMF जो है वो अपनी शराइत जो है वो तय करती है। तो ये सारी सूरत हाल अवाम के साथ को बतानी पड़ेगी और बतानी चाहिए। और अगर ये सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 3.5 साल की नहीं है तो सही है, हम ये समझते हैं कि इससे पहले भी शायद कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन जो हालात बहुत खराब हुए वो तो पिछले 3.5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेनी है। फिर आप देखिए अभी गर्मियां आई नहीं है, लोड शेडिंग कितनी बढ़ गई है और भी बहुत सारी चीजें। रमजान में अभी सूरत हाल जो बनने वाली है, लोड शेडिंग के साथ साथ जो महंगाई और बाकी चीजें, तो आने वाली हुकूमत के लिए को भी बहुत सारा कुछ जो है वो बर्दाश्त, पिछला बोझ करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और अब अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि वो जो जबरदस्ती के साथ और वो गैर आईनी तरीकों के साथ जो है वो इक़्तिदार में रह सकते हैं तो ये बहुत बदकिस्मती होगी। पाकिस्तान के अंदर एक आईनी अमल है जिसके अंदर आइन के आर्टिकल 95 के तहत जो है वो अदम एतमाद आई है,
इस पे वोटिंग होनी है। 95 के तहत जो है उनको अपने अगर ये होता है वो कामयाब हो जाती है तरीके से एतमाद, तो नए प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होनी है, उसी वक्त होनी है, उसी दिन भी हो सकती है, और ये सब जो है ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो अब अगर ये सूरत बनती है तो जाहिर है कि देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इख्तियार करते हैं और उनके पास है कौन से ऑप्शन, और फिर अदालतें मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज होती है तो अदालतों में सियासी जमातें जा सकती हैं, ताकि आपने देखा जनरल मुशर्रफ ने जब इमरजेंसी लगाई थी 2007 3 नवंबर को, उसी वक्त अदालतें जो है वो बैठी और उन्होंने जो है वो उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड करा दे दिया। तो खैर खुदा करे ऐसी कोई सूरत ना हो। हम तो वो बात करें जो कि अभी शहबाज शरीफ और बिलावल साहब ने कही है कि कोई गैर आईनी इक़दाम जो है वो हो सकते हैं, या जिस तरह की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो आप देखते हैं कि इससे क्या सूरत हाल रही है। बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से हमने आज केपीके में देखा कि वहां पर ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, और एक साउंड बाइट भी हमने चलाई जिसमें वहां के वज़ीर आला लोगों से कह रहे हैं कि सड़कों पे बाहर आओ, और 3 बजे का वक्त दिया गया। फिर खबरें भी ऐसी आई कि अमेरिका के मुखालिफ वहां पर नारेबाजी भी की गई। जिस तरह से अभी आसमा भी कह रही थी कि एक लेवल पर हमारी कौम में अमेरिका मुखालिफ जज्बात यकीनी तौर पर हर दौर में रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर कभी इस तरह की बात नहीं की गई। इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी सारी काबीना, उनके जितने करीबी लोग हैं, वो इसी एक बयानिए को, ये जो मजलूमियत का कार्ड है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहब जो केपी हैं, अगरचे वो भी चीफ मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ तो कोई तहरीक एतमाद भी पेश नहीं हुई, ना वहाँ कोई इस्तीफे की बात चल रही है, ना वहाँ कोई भी ज़ाहिरी तौर पर ग्रुप बनना है। लेकिन अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जिसकी वीडियो की बात कर रहे हैं, हमने भी सुनी है और हमने भी लोगों से तर्जुमा पूछा उसका, चूँकि पश्तो में उन्होंने कहा है कि वो लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि जिन अरकान ने इनहराफ किया है, जो नाराज़ अरकान हैं, उनको उनके खिलाफ मुजाहरे किए जाएँ, उनको इबरत का निशान बनाया जाए और एंटी अमेरिका रैलियाँ की जाएँ, एंटी अमेरिका जो है वो जज्बात को हवा दी जाए। तो ये सारी कोशिशें तो ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही हैं और चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग कर रहे हैं। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो है आज भी अभी भी हमारी इतला है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो मनहरफ अरकान थे या नाराज अरकान थे उनसे रब्ता किया जाए, उनके ज़िज़ो क़र्ज़ से रब्ता किया जाए, उनमें से 2, 3, 4 अखलाकी तौर पर एक बरसरी के लिए उनको वापस लाया जाए, उनको मीडिया के सामने शो किया जाए और कहा जाए कि चूंकि उनको इतला मिली है कि कोई बड़ी गद्दारी का मामला है और एक गैर मुल्की ताकत इस एतमाद के पीछे है, तो लिहाजा हम वापस आ गए। इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अवाम को भी जो है वो उनको भी प्रोवोकेशन की जा रही है, उनको भी मोबिलाइजेशन की करने की कोशिश की जा रही है कि लोग जलसों में जाएं, लोग जुलूस निकालें, लोग एहतजाज करें और इरकान असम्बली को जो है दबाव में लाया जाए। तो ये सारे कोशिशें तो वो करेंगे, एंटी अमेरिकन जज्बात भी उभारेंगे। वो जो उनकी पार्टी का हमेशा से बयानिया रहा है कि जल्द से जुलूस के जरिए, कोर्शन के जरिए वो कोशिश करते हैं कि अपनी बात को जो है एडवोकेट किया जाए, तो वो भी कोशिश करेंगे। और इस बात में तो कोई उन्होंने अब छुपाया नहीं है। ऐसी बातें भी थी, अभी कुछ वजीरों से हमने पूछा कि आप सुना है कि अदम एतमाद के दिन इतवार को कुछ लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, तो उन वज़रा ने हम ऑफ द रिकॉर्ड तो हमें यही कहा कि नहीं, हम कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे और ऐसा कोई इज्तिमा यहाँ नहीं होगा और नहीं ऐसा इज्तिमा ना ही हमने कोई किसी को कहा है, लेकिन उड़ती उड़ती बातें सुनते रहते हैं। तो ये एक खास तरह का सिनेरियो है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सिनेरियो का अदम एतमाद की तारीख से ताल्लुक तो है, लेकिन बुनियादी उसका जो निशाना है वो जो पोस्ट अदम एतमाद सिनेरियो होगा, अगर तो अदम एतमाद की तारीख जो है डिफीट हो जाती है, जिसका इम्कान होता है हमेशा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू थोड़ी देर में आने वाला है टीवी चैनल को, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम अदम एतमाद की तारीख को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए तो आम इंतखाबात की एक अच्छी ऑप्शन होगी। तो इसका मतलब है कि सबके जहन में अदम एतमाद की तारीख कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में अर्ली इलेक्शन है। तो अब जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी तैयारी होगी, वो आने वाले इलेक्शन के सिनेरियो को सामने रखकर होगी। सही, बिल्कुल।